Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear students, how are you? I hope you must be doing well. Today, the lesson which we are going to study, it is very much concerned about our daily life, about our social life, about the very concept of mutual coexistence, about the theme line of live and let live. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका ताल्लुकात सह अस्तित्व से है, उसका ताल्लुकात हमारे सामाजिक जीवन से है। एक लाइन जिसे आप सब ज़रूर सुने होंगे, जियो और जीने दो, इसका संबंध उस पंक्ति से है। सो यू मस्ट हैव गेस्ड द नेम ऑफ द लेसन। द नेम ऑफ द लेसन इज द रूल ऑफ द रोड, द रूल ऑफ द रोड, सड़क के नियम। सो द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, in fact this is an essay. So, the author of this essay is A.G. Gardiner. A.G. Gardiner, he is a great British essayist. He has written on a number of themes, and basically he talks about journalism, humanism and liberalism or liberalism. The style of his writing you will find in the story. There is a lot of humor, irony and satire at the same time. So, जैसा कि अभी मैंने कहा कि यह एक निबंध है, क्योंकि A.G. गार्डिनर एक बहुत ही ख्याति उपलब्ध ब्रिटिश निबंधकार हैं। इनके निबंध में हमें ह्यूमर भी मिलता है, आयरनी भी मिलती है। आयरनी जिसे आप विडंबना कहते हैं, और उसके साथ सटायर भी है। तो ये कहानी इन लिटरेरी डिवाइसेज से, इन तीन चीज़ों से, जिसे मैंने कहा ह्यूमर, सटायर एंड आयरनी, तीनों से भरा पटा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, let us see the first part of this story, the first paragraph of this story, which tells us about the author himself. So, Alfred George Gardiner, in brief we say A.G. Gardiner, no? He was born in 1865 and died in 1946. Widely known under his pen name of Alpha of the Plough. Alpha of the Plough. It was his pen name. With this name, he has written a number of essays. Was one of the most delightful essayists of modern times. आधुनिक समय के सबसे बेहतरीन निबंधकारों में से एक ये हैं. He was the editor of the Daily News from 1902 to 1921. 1902 से 1921 तक डेली न्यूज जो समाचार पत्र था उसके ये एडिटर थे. His essays combine ideas and emotions. इनके निबंध में विचार और भावना समाहित है. With beauty of form and remind us of pleasant things. Pleasant things, sunshine and mirth. तो इनकी कहानियों में, जैसा कि शुरू में मैंने कहा, ह्यूमर भी है, आनंददायक चीज़ें भी हैं, सनशाइन एंड mirth. इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस. उजाले भी हैं, खुशहाली भी है, हंसी भी है. His collections of essays include Pebbles on the Shore. इनकी कहानियों के जो संग्रह हैं उसका नाम Pebbles on the Shore है. Windfalls and Mar Furrows. In this essay, he points out in an essay and
thought in an easy and thought-provoking manner. What constitutes true liberty? So, his collections of essays include Pebbles on the Shore, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी कहानियों की जो संग्रह या निबंध के जो संग्रह उसका नाम Pebbles on the Shore है, Windfalls and Marfroge है. In this essay, इस निबंध में जिसे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, he points out in an easy and thought-provoking को बच्चों विचारोत्तेजक कहते हैं, manner what constitutes true liberty. और इस कहानी के माध्यम से हम ये बताने जा रहे हैं कि what is the meaning of true liberty. So before venturing into the essay, it's important to understand. कहानी को शुरू करने से पहले बच्चों यह ज़रूरी है कि हम समझ लें, after all, what is the difference between liberty and anarchy. One can ask a question, are you really free? ये सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूँ कि आप आज़ादी का या स्वतंत्रता का क्या मतलब समझते हैं. Are you really free? Do you have freedom? क्या आप स्वतंत्र हैं? No, where your freedom stops. आपकी आज़ादी कहाँ समाप्त होती है? Is freedom really absolute or is it relative? क्या ये सापेक्ष है या अपने आप में absolute है? इन तमाम चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है. So what I would like to say that there is a thin line between freedom and anarchy. स्वतंत्रता और अराजकता में बहुत बारीक अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है. There is a thin line, no? So in general talk in our society, समाज में जब जैसे हम जीते हैं, हम काम करते हैं, तो आप उस सिलसिले में, उस संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं. there is an old saying, एक पुरानी कहावत है, और कहावत कुछ यूँ है कि your freedom ends where my nose begins. Your freedom ends where my nose begins. कहने का मतलब ये है कि your freedom is quite fine, quite good, as long as it doesn't disturb me. आपकी आज़ादी बिल्कुल ठीक है, तब तक ठीक है जब तक वो हमें परेशान नहीं करती है. आपकी आज़ादी जब हमें परेशान करना शुरू कर देती है या आपकी आज़ादी से जब हमें कठिनाई महसूस होता है तो आपकी आज़ादी वहीं ख़त्म होती है. So therefore I said that freedom is not absolute. We have to practice freedom, we have to understand freedom in a relative term. इस तरह से हमें आज़ादी को देखना पड़ेगा. You all must have read, must be knowing, आप सबको मालूम होगा, आप सब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे कि जो अपने संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) है, संविधान के जो आर्टिकल हैं 19(1)(a), उसमें आज़ादी की बात है. It talks all about liberty, no? In the preamble of our constitution, which you all have been reading since long. So they also talk about liberty, equality, fraternity. तो हमारा जो प्रस्तावना है संविधान का, उसमें भी आप अवश्य ही पढ़ते होंगे स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, बंधुत्व के बारे में. So basically, in fact, the purpose of this chapter is to make us feel, is to make us realize, is to make us understand how beautifully we can live in the society without harming, without damaging the interest of others. So this is what we are going to study in this chapter. इन तमाम बिंदुओं पर गंभीरता से डिटेल में हम इस पाठ में बात करेंगे. This lesson is of course very interesting because the author is a great essayist. He has put a lot of humor, satire and irony in this story.
So, let us see the first paragraph of this story. The story begins like this. A stout old lady was walking with her basket down the middle of Petrograd to the great confusion of the traffic and with no small peril to herself. Petrograd, it was a very famous city when there in Russia, particularly when Tsar was ruling Russia. So, later on it came to be known as Leningrad. You must have heard about Russian Revolution which took place in 1917. तो आप रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़े होंगे जो 1917 में हुआ था और जार के कुशासन से रशिया को मुक्त कराया गया था। तो ये उस ज़माने की कहानी है। सो द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज द रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 इन रशिया। तो उसके बाद वो लेनिनग्राड हो जाता है। सो इट इज़ अ वेरी फेमस सिटी इन रशिया, पेट्रोग्राड, टू द ग्रेट कन्फ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक एंड विथ नो स्मॉल पेरिल टू हरसेल्फ। तो यहाँ कहानी में एक महिला हैं, वो वृद्ध हैं और वो सड़क के बीचों बीच चली जा रही हैं। यद्यपि पेवमेंट है, फुटपाथ, पैदल लोगों के चलने के लिए रास्ते वहाँ हैं, लेकिन वो बिल्कुल बीचों बीच चली जा रही है। विथ स्मॉल पेरिल टू हरसेल्फ। पेरिल का मतलब रिस्क होता है, पेरिल का मतलब डेंजर होता है। तो वो उस रिस्क को नज़रअंदाज करते हुए, अनदेखा करते हुए सड़क के बीचों बीच चली जा रही है। इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर दैट द पेवमेंट वॉज द प्लेस फॉर फुट पैसेंजर्स। उस महिला को ये बताया गया कि पेवमेंट जो सड़क के किनारे होता है जिसमें पैदल लोग चलते हैं, तो पेवमेंट्स है, वहाँ वो चल सकती हैं। बट शी रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक। लेकिन उसका जवाब देखें, वो क्या जवाब देती है। सो जस्ट पे अटेंशन माय डियर चिल्ड्रन, बिकॉज यू मस्ट बी फीलिंग, यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स इन द स्कूल, इन द सोसाइटी। तो उस महिला की जवाब बड़ी अजीब है। वो जवाब देती हैं, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक। मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ मैं चाहती हूँ, या यूँ कहें ये मेरी मर्जी, जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ। आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक। वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ। और ये लेडी कहती हैं कि अब हम आज़ाद हैं, मुल्क आज़ाद हो चुका है। We have got liberty now, no? So, as I said you, that it talks about the background of the story is the Russian Revolution of 1917. 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन कहानी की पृष्ठभूमि में है। तो लेडी कहती हैं कि we have got freedom now, क्योंकि जार के शासन का अंत हो चुका है और कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ सरकार बन चुकी है। तो इसलिए वो कहती हैं कि आज़ादी मिल चुकी है, जार के शासन का अंत हो चुका है। तो कहती हैं वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ, अब हम आज़ाद हैं। इट डिडंट occur to the dear old lady that if I entitle the foot passenger to walk down the middle of the road, entitled the cab driver to drive on the pavement। तो ये बात उस महिला को समझ में नहीं आ रही थी कि अगर पैदल यात्री सड़क के बीचों बीच चलेंगे तो जो कैब ड्राइवर है, जो टैक्सी ड्राइवर है, वो पेवमेंट पर भी तो चल सकता है। समझ रहे हैं आप? मैं मतलब ऑथर ये एक हाईलाइट करना चाह रहा है। आखिरकार देयर इज अ सर्टेन मीनिंग ऑफ फ्रीडम, इजंट इट? इफ द वुमन डिक्लेयर्स दैट, द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्स दैट आई कैन गो वेयरएवर आई लाइक बिकॉज वी हैव गॉट फ्रीडम। जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ, हमें आज़ादी मिल चुकी है। तो ऑथर कहता है कि अगर इस तरह से, अगर जिसे पेवमेंट पर चलना चाहिए, जो पैदल यात्री हैं उनको पेवमेंट, सड़क के किनारे उनके चलने के अलग से रास्ते बनाए जाते हैं, तो वहाँ से वो नहीं चलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो कैब ड्राइवर है वो पेवमेंट से चल सकता है, बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो गॉट फ्रीडम इन सिमिलर अमाउंट। उतनी ही आज़ादी उसे भी तो मिली है।
to drive on the pavement, and that the end of such liberty would be universal chaos. और लेखक बाद में इस बात को कंक्लूड करते हैं, अगर इस तरह से हो तो क्या होगा। तो लेखक कहते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति हो, जिसका मन जो चाहे वह व्यक्ति वह करे, तो इस तरह से एक यूनिवर्सल कैओस होगा। कैओस का मतलब बच्चों अराजकता होता है, लॉलेसनेस है ना। अब जिसकी जो मर्जी वही वह करे तो एक ढंग से अराजक स्थिति उत्पन्न होगी। तो लेखक कहते हैं कि इस तरह से सार्वभौमिक अराजकता हो जाएगा, हर जगह अराजकता ही अराजकता हो जाएगी। अब इट इज जस्ट लाइक दैट, थिंक चिल्ड्रन अबाउट योर ओन स्कूल क्लासरूम। अगर कोई बच्चा क्लासरूम को गंदा करता है, इंस्टेड ऑफ नो क्लीनिंग इट, आवश्यकता है उसे समझाने की, उस गंदगी को साफ करने की, बट नॉट डूइंग दैट, इंस्टेड ऑफ दैट इफ नो यू ऑल्सो थिंक दैट आई हैव ऑल्सो द राइट टू लिटर द क्लासरूम, मुझे भी यह हक है क्योंकि उसने क्लासरूम को गंदा किया तो मैं भी क्लासरूम को गंदा करूँगा। दिस इज हाउ द होल स्कूल विल टर्न इनटू अ डर्टी प्लेस। सो इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो महिला कहती हैं कि आई हैव द राइट, द कंट्री हैज़ गॉट फ्रीडम, आई मे गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, देश आज़ाद हो चुका है, पेमेंट पर नहीं चलूँगी, बीच सड़क पे चलूँगी। तो लेखक उसके साथ ये भी कहता है कि अगर ऐसा हो तो जो कैब ड्राइवर है वो अगर ये कहे कि मैं पेमेंट से चलूँगा तो क्या होगा। तो उस स्थिति में सार्वभौमिक अराजकता होगी, हर जगह उथल पुथल होगा, हर जगह कानून का उल्लंघन होगा, जीना दूभर हो जाएगा। सो सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल कैओस। कैओस का मतलब आप समझ गए होंगे, अराजक स्थिति होती है, लॉलेसनेस है। एवरीबॉडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबॉडीज एल्स वे, हर कोई एक दूसरे के काम में, एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल देगा, एक इन एवरीबॉडी एल्स वे एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर। और इस तरह से कोई कहीं भी नहीं पहुंचेगा। मीन्स नो द सोसाइटी वुड बी एट द स्टैंड स्टिल, सब कुछ रुक सा जाएगा, थम सा जाएगा। इंडिविजुअल लिबर्टी वुड गेट एनीवेयर, इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनार्की। और इस तरह से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो व्यक्तिगत आज़ादी है, वह अराजकता में परिवर्तित हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि लिबर्टी और फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, नो, वी हैव टू प्रैक्टिस इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन रिलेटिव टर्म। आई ऑल्सो सेड यू डियर स्टूडेंट्स दैट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन लिबर्टी एंड chaos, between liberty and anarchy। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता कहें, स्वतंत्रता और अराजकता में बहुत बारीक अंतर है, उसे हमें समझना है। तो यहाँ तक आप ज़रूर समझ गए होंगे कि आज़ादी का मतलब बिल्कुल आर्बिट्रेरीनेस नहीं होता है, आपका जो जी चाहे आप वो करें, ऐसा नहीं होता है। सो फ्रीडम is there but certainly with restrictions। आज़ादी तो है लेकिन नियंत्रण के साथ है, अनुशासन के साथ है। The more you will be self-disciplined, the more free you will feel, then you will have more and more freedom in that way। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी को एंजॉय कर पाइएगा। So the condition is you must be self-disciplined, and the law also tells there is freedom but with restrictions। You must have heard about Jean-Jacques Rousseau। रूसो का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। He was a Swiss philosopher। He also talks about freedom। उनकी एक बहुत मशहूर थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। So here just like that, freedom, it's also a contract। Contract, I mean to say, जब हम contract कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरी आज़ादी आपकी आज़ादी से जुड़ी हुई है, मेरी आज़ादी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है।
So we have to practice just like that. Let us see the next part of this story. So there is a danger of the world getting liberty drunk in these days, like the old lady with the basket, and it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means. There is a danger of the world getting liberty drunk. और जिस तरह से वो वृद्ध महिला सोच रही थी, बोल रही थी और कर रही थी, ये स्थिति हो तो अराजकता ही अराजकता होगी. सो देयर इज अ डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक. नहीं तो इस तरह से एक तरफा नहीं सोचना है, इस तरह से आज़ादी को हमें नहीं लेना है. In these days, like the old lady with the basket, and it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means. और हमें यहाँ उस ओल्ड लेडी के उदाहरण से, उस वृद्ध महिला के उदाहरण से समझना चाहिए कि आखिर सड़क के क्या कायदे कानून हैं, सड़क के क्या रूल्स हैं. It means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. उस वृद्ध महिला के संदर्भ में अगर आप देखें तो कहती हैं कि I may go wherever I want, we have got freedom. नहीं तो उस हिसाब से ये होगा कि एक व्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए हर किसी के आज़ादी को तहस नहस करना होगा या हर किसी के आज़ादी पर प्रतिबंध लगाना होगा. नो बिकॉज द वुमन देयर, द ओल्ड लेडी, she is there to create chaos, to create anarchy, to create lawlessness. वह एक कानून विहीनता की स्थिति पैदा करती हैं, वह सड़क पर अराजकता लाती हैं. जिस तरह से वो कहती हैं कि मैं सड़क के बीचों बीच चलूँगी, पेवमेंट से नहीं चलूँगी, तो ऑथर उस समय एक दूसरा एग्जाम्पल पेश करते हैं और वो कहते हैं कि अगर कैब ड्राइवर सोचेगा कि मैं सड़क से नहीं पेवमेंट से चलूँ तो क्या होगा. तो इस तरह से इस कंडीशन को, इस स्थिति को लेखक लिबर्टी ड्रंक कहते हैं. इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. When the policemen say at Piccadilly Circus, Piccadilly Circus एक बहुत ही बिजी सेंटर है, स्ट्रीट है लंदन में, जहाँ बहुत सारे रोड एक साथ आकर मिलते हैं. So that is Piccadilly Circus. So when the policemen say at Piccadilly Circus steps into the middle of the road and puts out his hand. नहीं तो अक्सर बच्चों आप देखते होइएगा कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं तो सड़क पर या चौराहे पर बीच में खड़े होते हैं और अपने हाथ से इशारा करते हैं. थोड़ी देर के लिए एक तरफ की गाड़ियों को रोकते भी हैं, फिर दूसरी तरफ की गाड़ियों को चलने की इजाज़त भी देते हैं. नो सो ऑल दीज थिंग्स डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. आप बेहतरीन ढंग से इसे समझ सकते हैं कि ये सारे चीज़ जो होते हैं वहाँ उन चौराहे पर ताकि लोगों को सुविधा हो यातायात में, इसलिए नहीं कि लोगों को असुविधा हो. सो दिस इज़ व्हाट द ऑथर वांट्स टू हाईलाइट थ्रू दिस एग्जांपल. या सो व्हेन द पुलिसमैन से एट पिकाडिली सर्कस स्टेप्स इनटू द मिडल ऑफ द रोड एंड पुट्स आउट हिज हैंड, जिस तरह से ट्रैफिक वाले इशारा करते हैं, he is the symbol not of tyranny. वह tyranny का मतलब आतंक होता है. नो तो पुलिसमैन वहाँ थोड़ी देर के लिए किसी गाड़ी को रोकते हैं, किसी डायरेक्शन से आने वाली गाड़ी को हाथ का इशारा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंक के पर्याय हैं, बट ऑफ लिबर्टी. इनफैक्ट वे आतंक के पर्याय नहीं हैं, आज़ादी के पर्याय हैं, स्वतंत्रता के पर्याय हैं. अब यहाँ आप ज़रा सोचें, tyranny वर्ड है और लिबर्टी का है और लिबर्टी वर्ड, दो वर्ड है. एंड द पुलिसमैन हु इज स्टैंडिंग देयर हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक, नो ही इज देयर एज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी. सो हियर द मीनिंग ऑफ लिबर्टी बिकम्स क्वाइट इलैबोरेट. तो यहाँ आज़ादी का मतलब व्यापक अर्थों में लिया गया है. आज़ादी का मतलब यहाँ बेहतर कानून व्यवस्था को
कायम करने से भी है। यू मे थिंक सो, आप ऐसा सोच सकते हैं। यू मे बीइंग इन अ हरी एंड सीइंग योर मोटर कार स्टॉप्ड बाय दिस इंसोलेंस ऑफ ऑफिस। इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, अगर आप इंसोलेंट ऑफिसर कहें तो ये इसका मतलब र्यूड होता है, इसका मतलब अनसिविलाइज्ड होता है, नहीं? तो जो रूड है, जो बिल्कुल अशुभ है या गलत तरीके से पेश आता है, बात करता है। सो देयरफॉर द ऑथर हैज यूज्ड दिस वर्ड। You may being in a hurry and seeing your motor car stopped by this insolence of office feel that your liberty has been violated। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर सरकार के ये बनाए हुए नियम हैं, वह पुलिस वाला ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, आप जिस मोटर से जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको रोके और आप अगर ये समझें कि यह जो व्यवहार है पुलिस वाले का, यह असभ्य व्यवहार है, यह ठीक व्यवहार नहीं है, तो ये बात वैसे गलत है, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं। नो, सो योर मोटर कार स्टॉप्ड बाय दिस इंसोलेंस ऑफ ऑफिस फील दैट योर लिबर्टी हैज बीन वायलेटेड। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी आज़ादी को नियंत्रित किया गया है। हाउ डेयर दिस फेलो इंटरफेयर विथ योर फ्री यूज ऑफ द पब्लिक हाईवे। और किस, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आखिर किस तरह से यह पुलिस ऑफिसर हमें रोका, क्योंकि ये हाईवे जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, सभी लोगों के लिए ये है, तो पुलिस वाले ने मुझे क्यों रोका, ये सोच हो सकती है। देन इफ़ यू आर अ रीजनेबल पर्सन, लेकिन अगर आप नो तो ऐसा आप सोच सकते हैं। या सो इन फैक्ट इस पार्ट में ऑथर अनेक एग्जाम्पल्स देते हैं। कहानी की शुरुआत, निबंध की शुरुआत ही एग्जाम्पल से होती है। नो, द ऑथर हैज नरेटेड द स्टोरी ऑफ द ओल्ड लेडी देयर इन पेट्रोग्राड इन अ सिटी ऑफ रशिया, एंड in fact the author wants to make us understand that liberty, your freedom, you are free as long as your freedom doesn't hurt the freedom of your fellow human being। आप जिस समाज में रहते हैं तो आपकी आज़ादी सुरक्षित है, सुंदर है तब तक जब तक इससे किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को नुकसान नहीं होता है, को ठेस नहीं पहुंचता है। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू स्टडी इन दिस पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। वी शैल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, नमस्कार, स्टे ब्लेस्ड।